اس سے پہلے کہ میں خداوند کے زندہ کلام کو کھولوں، اگر آپ پریشان ہیں تو کلام کھولنے سے پہلے ہی کلام کی طرف نہیں آتے، دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے عظمت زیادہ اپنے کلام کو دی ہے۔ یہاں پر لاڑے سے بھی زیادہ عظمت خدا کے کلام کی ہے۔ تو اگر کلام کو کھولیں اور ادھر سے بار بار مجھے اشارے کرے تو پھر میں کھولتا ہی نہیں۔ اگر وقت ہے تو خدا کے کلام کو سن لے، نہیں وقت تو عامل کر لیتے ہیں۔ آئیں کلام خدا میں سے ایک آیت دیکھیں گے، یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں گے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند تیرے بیٹے قدیر کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں، جس کو تو نے برکتوں سے مالا مال کیا اور یہ خوبصورت وقت بخشا کہ اس کی شادی کا انتظام ہو۔ پیاری بہن پروین کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جس کو تو نے یہ بڑی خوشی عطا کی۔ اس سارے خاندان کے لیے اور جتنے مہمان اور جتنے عزیز یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے لیے تجھے مبارک کہتا ہوں اور منت کرتا ہوں جلال کے بادشاہ، تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے یہ جو ایک آیت پڑھی ہے، یہ ایک ایسی خوش نصیب شادی تھی جس میں خداوند یسوع نے پہلا معجزہ کیا، اور اس شادی میں خداوند یسوع کا جلال ظاہر ہوا، اور اس شادی پر خداوند یسوع کے شاگرد جنہوں نے پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی اور پوری دنیا میں مسیحیت کا بیج بویا، وہ یسوع پر ایمان لائے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی جس میں یسوع کی ماں موجود تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کو بھی وہاں پر مدعو کیا گیا تھا۔ جب شادی کا جشن شروع ہوا اور شادی کے جشن میں جب مشروب پیش کیا گیا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کی مے جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے بھی مے پلائی تھی اور اس کو دوسرے لفظوں میں لیتے ہیں، لیکن وہ مے جو تھی وہ انگوروں کا رس تھی۔ جس طرح پاکستان کا مشروب گنے کا رس ہے، وہ اس علاقے کا مشروب تھا، انگوروں کی مے۔ اور جب مے ختم ہو گئی تو یسوع کی ماں نے اسے کہا کہ مے ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ یسوع نے اس وقت کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو بھی اس نے اپنی ماں کی بات کو مانا، اور لکھا ہے کہ جب مقدسہ مریم نے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، انتظامیہ تھے، انہیں کہا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کرو، اور جب انہوں نے یسوع کی بات مانی،
यीशु ने कहा कि मटकों को लबालब भर दो, और लिखा है कि वहां उस शादी में 6 मटके थे जिनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। और जब मैं खत्म हो गई थी और उनकी अना का मसला था और वहां पर मैं की मौजूदगी मुमकिन नहीं थी कि मैं लाई जाए, मैं तकरीब में जल्दी से मुहैया की जाए। लिखा है कि काना गलील, जो काना शहर था, वो सरकंडों का शहर था, वो अंगूरों का शहर नहीं था। इसलिए शायद और मुश्किल था कि यहाँ से बर वक्त मैं को मुहैया किया जाए। और इस नाउमीदी के आलम में, इस नाउमीदी के वक्त में कि ये सरकंडों का शहर है और मैं खत्म हो गई, के मटकों को पानी से भर दो। फिर यीशु ने कहा कि इसे निकाल कर मेरे मजलिस को पिला दो। और जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा, वो मैं चखी, तो उसने दुल्हा को बुलाकर शिकवा किया कि तमाम लोग हच्छी में पहले पेश करते हैं और जब पी कर छिक जाए तो फिर नाकस में पेश करते हैं, लेकिन तूने पहले नाकस में पेश की और अच्छी रख छोड़ी। वो ये नहीं जानते थे कि ये अच्छी में कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन इसको बनाने वाला है। मेरे अजीज, हमारा खुदा जो है वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है, वो उम्मीद का सरचश्मा है। और जहाँ पर उम्मीद नहीं होती, इस तरह काना में वो सरकंडों का शहर है और बर वक्त में हाजिर करना या मुहैया होना नामुमकिन है। लेकिन खुदावंद यीशु ने खाली मटकों को जो पानी से भराया गया और फिर कहा मेरे मजलिस को पिला दो, तो वो पानी जो था मैं बन चुका था। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और जब उसके पास आएंगे तो फिर कभी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। मेरे अजीज, ये काना गलील में जो शादी हुई ये मंगल के दिन थी और मंगल के दिन खुदावंद यीशु ने ये पहला मौजज़ा किया और यहाँ पर ही उसके शागिर्द यीशु पर ईमान लाए। मेरे अजीज, आज इस थोड़े वक्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा की प्रस्तश होती है, खुदा का तख्त लगता है, तो फिर खुदा की हजूरी होती है। और जब अबलीस की प्रस्तश होती है तो फिर अबलीस की हजूरी होती है। और ज़बूर 107 में 107 ज़बूर की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर, उसके प्यार की खातर। और 2 ज़बूर 103 में कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये खुशी जो है ये सबसे बड़ी खुशी है, ये बहुत अहमियत की हामिल है। खुदा अपने लोगों को औलाद देता है और फिर औलाद की खुशियां देता है। और जो लोग खुदा के हैं उनके लिए ये जरूरी है कि काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। जब खुदा हमें ऐसी नेमतें देता है, बरकतें देता है, हम गिर जाते हैं वो उठा खड़ा करता है, हम पस्त होते हैं वो फिर सर बुलंद करता है और फिर हमें ऐसी खुशियां अता करता है, तो हमें सबसे बढ़कर उसी की प्रस्तश करनी है, उसी के नाम को जलाल देना है, उसी की हमद करनी है। जरूरी नहीं कि
किसी मजबूरी के तहत हम 10 मिनट दे दें और फिर जो चाहे वो करें। अगर हम खुदावन की शफकत की खातिर उसकी सिताइश करते हैं, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ और कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर हम नाचे कूदे या अबलीस का तख्त लगाएं तो हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कि साडा कुछ झंडा लग गया है। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम खुदा की प्रस्तुत करते हैं, अगर हम खुदा के आईनो कानून से वाकिफ हैं और फिर खुदा की हजूरी के लिए उसके हजूर हाजिर भी हुए हैं, और अगर हम उसका खौफ नहीं मानते तो फिर ये हमारे लिए कोई बाबरकत बात नहीं है। कलाम खुदा में यिर्मयाह की किताब में खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू जाकर रेकाबियों के घर में उसके घराने को, उसके नौजवानों को खुदावन के घर की एक कोठरी में ला और उन्हें मैं पिला। कभी कभी जो लोग कभी नहीं ना शराब पिया वो भी शादी में पीते हैं। ये खुशी का वक्त है। और कलाम खुदा में यिर्मयाह की किताब के 35 बाब में लिखा है कि खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि रेकाबियों के खानदान के जवानों को खुदावन की हैकल की कोठरी में ला और उन्हें मैं पेश कर, उन्हें मैं पिला। और यिर्मयाह रेकाबियों के घराने के जवानों को हैकल की एक कोठरी में लाकर वहां पर उनके आगे लबरेज प्याले भरे हुए मैं के पेश करते हैं कि ये पियो, और वो कहते हैं कि हम नहीं पिएंगे। हमारे बाप यूनादाब बिन रेकाब ने हमें मना किया है कि तुम ना मैं पीना, ना अपने लिए घर बनाना, ना खेत बोना, तुम खेमों में रहना और मेरी इबादत प्रस्तुत करना। यूनादाब बिन रेकाब की बात को मानते हैं और हमने कभी मैं नहीं पी और हम मैं नहीं पिएंगे। जब उन्होंने ना पी तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि यूनादाब बिन रेकाब के घराने के लोग अपने बाप की बात को मानते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी बात नहीं मानते। वो शराब नहीं पीते। अगर उनका शराब पीने के बगैर गुजारा हो सकता है तो हम जो खुदा के लोग हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्या हमारा नाचने कूदने से, शराब पीने से गुजारा नहीं हो सकता? और अगर उनका गुजारा हुआ है, उन्होंने नहीं पी, तो कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि यूनादाब बिन रेकाब के घराने के नौजवानों की मेरे यहाँ खड़े होने की कमी नहीं रहेगी, वो बढ़ते चलेंगे। ये कितनी बाबरकत बात है। यूनादाब बिन रेकाब के घराने के नौजवानों के लिए जिन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना और खुदा की वफादारी की। और कलाम खुदा में अगर हम रोमियो के खत को देखें, उसके पहले बाब की 21 आयत को, तो लिखा है कि जो लोग खुदा का खौफ नहीं मानते, खुदा को जानते हैं, जब मुसीबत आए तो खुदा के आगे गिरते हैं, जब पस्त होते हैं खुदा को बुलाते हैं कि हमें बुलंद कर, लेकिन जब बुलंद हो जाते हैं तो फिर उसके काम की कोई हकीकत नहीं समझते, उसका खौफ नहीं मानते। और कलाम खुदा में रोमियो के खत के पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके लायक उसकी तमजीद नहीं करते। उसके लायक तब तमजीद होगी जब हम दूसरी बातों को तर्क करेंगे। नबूकदनेस्सर के खौफ से उन जवानों ने जो हक के परस्तार थे,
जो खुदा के लायक उसकी तमजीद करते थे, उन्होंने इब्लीस की परस्तिश नहीं की। उनके लिए जो कानून था ये था कि अगर उन्होंने ना की तो आग की जलती भट्टी में डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया। लेकिन हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे सामने कोई आग की जलती भट्टी नहीं है कि अगर हम नाचे कूदेंगे नहीं तो कोई हमें आग की भट्टी में डाल देगा। फिर भी हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि अगरचे वो खुदा को जान तो गए लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। और जब ना की तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? 28 आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी से, बदी से, लालच से, बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़, गैबत, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तिबी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में कभी वक्त मिले कि आपको खुदा ऐसी खुशियां अता करे, अगर उसका हजूरी या उसका तख्त लगाए तो फिर दोबारा कभी ना कोशिश करें कि इब्लीस के लिए तख्त लगाया जाए, क्योंकि लिखा है कि जो खुदा को जान गए और उसके लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, खुदा फिर ऐसे लोगों को नापसंदीदा अकल के हवाला कर देता है। फिर अंजाम उलट हो जाते हैं। ये खुदा हमें बरकतें देता है, नेमतें देता है। जब हम गिर जाते हैं खुदा उठा खड़ा करता है, जब पस्त होते हैं वो बुलंद करता है, वो इज्जत शोहरत देता है, बरकत देता है। और हम उसकी हजूरी को शायद न चीज जानते हैं, लेकिन दूसरी हजूरी के लिए वक्त को हम वाफर मकदार पर ठहराना चाहते हैं। हमें उसका खौफ मानना है, हमें उसका डर मानना है, हमें उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फर्माबरदारी करनी है। और जो लोग फर्माबरदारी करते हैं वो बाबरकत हैं, वो इज्जत पाते हैं। और ऐसी शादियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, जिस तरह काना गलील की शादी में हुआ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आए देखें कि आज हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हम खुदा की शफकत के लायक उसकी तमजीद कर रहे हैं या किसी और के लिए वक्त ठहराना चाहते हैं कि उसकी हजूरी हो।